read something beautiful today. मैंने आज कुछ सुंदर पढ़ा। Suppose God wouldn't have been good to us. मान लो अगर प्रभु हमारे प्रति भले नहीं रहे होते What would have happened? तो क्या हुआ होता? Wow, what would have happened? क्या हुआ होता? But thank God. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, God has been good to us. प्रभु हमारे प्रति भले रहे हैं। Yeah, He has been so good. वो बहुत भले रहे। So my prayer is, तो मेरी प्रार्थना ये है, I hope you are reading the book of Esther. मैं आशा करता हूँ एस्तर की पुस्तक पढ़ रहे हो। Yeah, it's going to happen. वो होने वाला है। That God who we worship is the same God who led Esther. उस परमेश्वर की जिसकी हम आराधना करते हैं ना, वो वही परमेश्वर है जिसने एस्तर को अगुवाई की थी। Yeah, and she was victorious. और वो जयवंत हुई। You will also be victorious. आप भी जयवंत होंगे। Okay, so if you want to write, you can write. तो यदि आप लिखना चाहते हो तो लिखिए, Grace upon grace. अनुग्रह पर अनुग्रह। John 1:16. यूहन्ना 1:16 Beautiful verse. सुंदर वचन है। From his fullness, उनकी भरपूरी से, from the fullness of Jesus, यीशु की भरपूरी से, from the abundance that Jesus has, यीशु के पास जो बहुतायत है उसमें से, from the unlimited provision of Jesus, यीशु के असीमित प्रयोजन में से we all have received. हम सब ने पाया है। We have all received. हम सब ने पाया है। What have you received? हमने क्या पाया? Grace अनुग्रह upon grace. पर अनुग्रह। Okay, simple question. आसान सवाल। Has the Lord changed? क्या प्रभु बदले हैं? No. नहीं। So this grace तो ये जो अनुग्रह है, upon grace अनुग्रह पर अनुग्रह, will be multiplied in the name of Jesus. वो बहुगुणित होगा यीशु के नाम में। Now you can give the Lord a hand of praise. अभी आप प्रभु के लिए स्तुति की तालियां बजा सकते हैं। Oh, yes. Okay. Now, what is this grace? अभी ये अनुग्रह क्या है? So, man of God, he defined it nicely. परमेश्वर के एक जन ने इसकी परिभाषा अच्छे से बताई। So I felt this is the good definition. तो मुझे ऐसा लगा ये अच्छी परिभाषा है। It begins with forgiveness. उसकी शुरुआत होती है क्षमा से। Anybody over here deserves forgiveness? कोई यहाँ पर क्षमा के लायक है क्या? No. नहीं। We all deserve death. हम सब मृत्यु के लायक है। But thank God. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। Oh, the blood of Jesus. यीशु के लहू के लिए धन्यवाद। Oh, the blood of Jesus. वो यीशु का लहू It's a beautiful gift. सुंदर तोहफा है। Yeah. And I pray और मेरी ये प्रार्थना है, this whole 6 months, ये पूरे 6 महीने you will get undeserved grace. आपको वो अनुग्रह मिलेगा जिसके आप लायक नहीं हो। Your God is more stronger than your mother. आपके प्रभु ना आपकी माँ से भी ज्यादा शक्तिशाली है। Have you ever been a person who does not like to take bath? क्या आप कभी भी ऐसे व्यक्ति रहे हो जिसको नहाना पसंद नहीं? So, what your mother used to do? तो आपकी माँ क्या करती थी? Take you straight to the bathroom. आपको सीधा बाथरूम में ले जाती थी। You cry, आप रोते थे, but still the water will fall. लेकिन फिर भी पानी आपके ऊपर गिरता था। Shampoo will come on your head. शैम्पू आपके सर के ऊपर आता था। Lifebuoy will go on your लाइफबॉय आपके शरीर पर रगड़ा जाता था। and your crying will stop the moment the mother takes the hand off. और आपका जो रोना तब बंद होता था जब आपकी माँ अपना हाथ उठाती थी। Yeah, now you look fresh. अभी आप ताजे लग रहे हो एकदम। Now you smell good. अभी आपके अंदर से सुगंध अच्छी आ रही है। People who come to your home, they catch you also. जो लोग आपके घर आते हैं आपको पकड़ते भी हो। अभी If your mother can do it, अगर आपकी माँ वो कर सकती है, लिख लो, लिख लो। तेरा प्रभु तुझे पकड़ के yeah, लिख लो. आमेन आमेन। You write it from me. आप लिख लो ये। Yeah. Are you okay? आप सब Everybody? ठीक हो? Oh, okay. So I hope you are reading the book of Esther. तो मैं आशा करता हूँ आप एस्तर का पुस्तक पढ़ रहे हो। There are 6 grace which flowed over there, वहाँ पर 6 अनुग्रह जो बहे and it's going to flow over you. और वो आपके ऊपर बहने वाले हैं। Yeah. So the number 1 grace is, तो पहला अनुग्रह है, yeah, the grace which flows when you are being prepared. जब आपको तैयार किया जाता है तब जो अनुग्रह बहता है, Yeah, it's called preparation grace. उसे कहते हैं तैयारी का अनुग्रह। Yeah, and it's a powerful grace. और वो सामर्थवान अनुग्रह है। You feel very painful. आपको बहुत दर्द महसूस होता है, You feel alone. आपको अकेलापन महसूस You होता है, feel whether God is really interested in you. आपको ऐसा लगता है सच में प्रभु मुझ पे दिलचस्पी भी दिखाते कि You नहीं, feel there is no hope. आपको ऐसा लगता है कोई आशा नहीं बची। You only hear this tong, tung, tang, tung. आप सिर्फ इतना सुनते हैं टोंग टुंग टोंग टुंग। Pastor, what is this? पास ये है क्या? God is preparing you. प्रभु आपको तैयार कर रहे हैं। But during that time, लेकिन उस समय के दौरान God is working on your heart. प्रभु आपके हृदय पर काम कर रहे हैं। Pain is being removed. दर्द निकाला जा रहा है, Motives are being cleansed. मकसद शुद्ध किए जा रहे हैं, Attitudes are being cleansed. मनोभावनाएं शुद्ध की जा रही है, Character is being built. चरित्र बांधा जा रहा है, Arrogance is being broken. वो घमंड तोड़ा जा रहा है।
Humility is growing. नम्रता बढ़ रही You है, are getting ready. आप तैयार हो रहे हो। I speak over you मैं आपके ऊपर बोलता and I हूँ say to और you, आपसे कहता हूँ, God is the potter. प्रभु कुम्हार है, You are the clay आप मिट्टी हो and his hands are on you. और उनके हाथ आपके ऊपर है। I see his hands are nice and dirty with you. मैं देख पा रहा हूं उनके हाथ जो है अच्छे से आपसे जो है, जो आपकी गंदगी है ना उससे भरे हुए हैं। Pastor, शुभ शुभ बोलो ना, क्या शुभ बोलो? Have you read the Bible? There is nothing good in you करके. आपने बाइबल में पढ़ा है क्या जहां पर लिखा है कि तुम में कुछ भी अच्छा नहीं है? But the good one is putting his hands over the not good one. लेकिन जो अच्छा है ना वो उस पर अपना हाथ रख रहा है जो अच्छा नहीं है। Yeah, just think about it. जरा सोचो, Wow, what a God he is. वाह क्या परमेश्वर है, What a beautiful God he कितने is. सुंदर परमेश्वर And है। he is saying, और वो कह रहे हैं, I will make you look like me. मैं तुझे ना मेरे जैसे दिखने लगाऊंगा। So this girl Esther, तो ये जो लड़की एस्तर, she did not dream like this. उसने ऐसा सपना नहीं देखा, One day I will become the queen. एक दिन मैं रानी बनूंगी। No, नहीं, she was an orphan. वो अनाथ थी, She was a poor girl. वो गरीब लड़की थी, She was a captive girl. वो जो है बंदी बनाई गई लड़की She थी। was in a foreign land. वो जो है एक विदेश की जमीन पर She आई was थी, a slave. वो गुलाम थी वहां, But her God, लेकिन उसका परमेश्वर, he had a big plan for उसके her. पास उसके लिए बड़ी योजना थी। I want to say to you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, your future is good. आपका भविष्य अच्छा है, नहीं, इधर. Your future is bright. आपका भविष्य सुनहरा है। Don't look at your education, your work and say, अपनी पढ़ाई और अपना काम देख के ऐसा मत बोलो वाह, look at your God. अपने प्रभु को देखो। Some of you in your mind, you feel if you just come here, तेरी जिंदगी बन जाएगी. आपके मन में कुछ लोग आप सोचते हो कि अगर आप यहाँ आओगे तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। प्रभु बोल रहा है वहां मत जा, मेरे पास आ. प्रभु बोल रहे हैं वहां मत जा, मेरे पास आ, I have a plan for you. मेरे पास तेरे लिए योजना It's a है good plan. और वो अच्छी योजना It's a है, plan with a future वो भविष्य की योजना है and with hope. और आशा से भरी योजना है। So when she was growing, she has no idea. तो जब वो बड़ी हो रही थी उसको कोई कल्पना भी नहीं थी, But God had an idea. लेकिन प्रभु के पास योजना थी, He had a purpose. उनके पास उद्देश्य था। He said, I am going to do something powerful through this beautiful girl. प्रभु ने कहा इस सुंदर लड़की के द्वारा मैं कुछ तो सुंदर और सामर्थवान करूंगा। So he starts his preparation. तो वो अपनी तैयारी शुरू करते हैं। Before God launches you, प्रभु आपको भेजने से पहले God will prepare you. प्रभु आपको तैयार करेंगे। Okay, look at grace working in Esther's life. देखो जो अनुग्रह जो एस्तर के जीवन में काम कर रहा है। Yeah, the first thing God did is पहली चीज जो प्रभु ने की, He healed her pain. प्रभु ने उसके दर्द को चंगा किया। So how did God do this for her? तो प्रभु ने उसके लिए किया कैसे? She had a relative called Mordecai, उसका एक रिश्तेदार था मोर्देकाई नाम का, and he became like a father and mother to her. और वो उसके लिए पिता और माता के समान बना। तैयार हो जाओ, प्रभु तेरे रास्ते में कोई मोर्देकाई लोगों को लेके आने वाला है. Amen, amen. Yeah, and the Mordecai may not look the way you want them to look. और मोर्देकाई शायद जैसे आप चाहते वो दिखे वैसे नहीं They दिखेंगे। may not be the handsome or the most beautiful one, वो शायद जो सबसे सुंदर या हैंडसम नहीं होंगे, but they have the medicine to heal you. लेकिन उनके पास वो दवाई है जो आपको चंगा करेगी। There is pain, it's aching, you are crying. आपके अंदर दर्द है, आप वो दर्द से करा रहे हो। Before God launches you into the purposes of God, you have to be healed. परमेश्वर के उद्देश्यों में प्रभु आपको उड़ान देने से पहले प्रभु चाहते आप चंगे हो जाओ। जिसको दर्द होता है वो दूसरों को दर्द देता है, जिसके अंदर शांति होती है वो दूसरों को शांति देता है, जिसके अंदर प्यार होता है वो दूसरों को प्यार बांटता है, जिसके अंदर आनंद होता है वो दूसरों को आनंद बांट के जाता है. Amen. So your time has come. तो आपका समय आ चुका है, Yeah. And this grace is going to flow in your life. और ये अनुग्रह आपके जीवन में बहने वाला है। You're going to become a sweet person. आप मीठे व्यक्ति बनोगे। Wow. Next. उसके बाद Oh, the Lord taught her silence. प्रभु ने उसे चुप रहना सिखाया। James said, याकूब ने कहा perfect is the man who knows how to close his lips. सिद्ध व्यक्ति जो जानता है उसके होठ कैसे बंद रखना है। You know, she had to learn to be silent. उसको चुप रहना सीखना पड़ा, Because over there, nobody knew she is a Jew. क्योंकि वहां पर किसी को भी पता नहीं था कि वो यहूदी स्त्री है। There are some secrets you will have to learn to keep to yourself. तो कुछ रहस्य है जो आपने खुद तक रखना सीखना है। नहीं तो हमारा मुंह खुलता है, प्रभु असा म्हटला आणि प्रभु असा म्हटला और असा असा असा. No, 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 no. There is a time. हमें जो कभी कभी सीखना अपना मुंह बंद रखना और रहस्य को अंदर दबा के रखना, नहीं तो हम बोलते रहते प्रभु ने ऐसा बोला, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। और मेरे पास 100 करोड़ है. और मेरे पास 100 करोड़ है, Finish. खत्म। You know, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ you will learn silence. आप चुप रहना सीखोगे। How will God teach silence?
प्रभु चुप रहना कैसे सिखाएंगे? He'll remove some people from your life. वो आपके जीवन से कुछ लोगों को निकाल देंगे। Loneliness अकेलापन is a gift. वो तोहफा है। Why, Pastor? पास्टर क्यों? Because God can be with you. क्योंकि प्रभु आपके साथ रह सकते हैं। God can become your closest friend. प्रभु आपका सबसे करीबी दोस्त बन And सकते हैं God will work on your और tongue. प्रभु आपके जुबान पर काम करेंगे। Next. के बाद Wow. God cleanse her identity. प्रभु ने उसकी पहचान को शुद्ध किया। Are you ready? आप तैयार हो? What was God doing? प्रभु क्या कर रहे थे? God wanted to make her a queen. प्रभु उसे रानी बनाना चाहते थे। But who was she? लेकिन वो थी कौन? Poor girl. गरीब लड़की, Orphan girl. अनाथ लड़की, Slave girl. गुलाम लड़की, Captive girl. बंदी लड़की। And if you take this child और यदि आप इस बच्ची को लोगे with this kind of identity, इस प्रकार की पहचान के साथ put her on the throne. और उसे सिंहासन पर बिठाओगे, So when God was cleansing her identity, तो जब प्रभु उसकी पहचान को शुद्ध कर रहे थे, God was removing something. प्रभु कुछ निकाल रहे थे। What was he removing? वो क्या निकाल रहे थे? Her helplessness, उसकी जो है मददहीनता, her loneliness, उसका अकेलापन, her orphan mind. उसका अनाथ मन, And God was putting something inside. और प्रभु उसके अंदर कुछ डाल रहे थे, Confidence. आत्मविश्वास। Okay, next. उसके बाद God helped her प्रभु ने उसकी मदद की to trust God's favor. कि प्रभु की कृपा पर वो भरोसा करे। You know, you have to come to a place आपने ऐसे स्थान पर आना है where you trust. जहाँ पर आप भरोसा करते The हो। moment I walk out, जिस क्षण मैं बाहर निकलता हूँ, God's favor is upon me. प्रभु की कृपा मुझ पर है। You know, look at this girl. ये लड़की को देखो आप। You know, it was time to see the king. राजा के सामने आने का समय था वो। So all the other girls, you know what they did? तो बाकी सारी लड़कियों ने क्या किया They पता? took this jewelry, उन्होंने ये गहने लिए, this cloth. ये कपड़ा लिया, They did a lot of things. उन्होंने बहुत सारी चीजें की, She did not do anything. लेकिन इसने कुछ नहीं किया। She just went and did whatever her boss told. जो भी उसको कहा गया था उसने सिर्फ उतना ही किया। जो भी उसके बॉस ने उसको कहा उतना ही किया। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, ये मौसम में ना तेरा घमंड तोड़ने वाला है प्रभु। Amen. अच्छा, before Esther became queen, there was another queen. Her name was Vashti. एस्तर की रानी बनने से पहले और एक रानी थी जिसका नाम था वास्ती। So one day king said, please come, let everybody see your beauty. तो एक दिन राजा ने कहा तुम सामने आओ, सभी को तुम्हारी सुंदरता देखने दो। But Vashti did not come. लेकिन वास्ती आई नहीं। And you cannot say no to a king. और आप एक राजा को ना बोल नहीं सकते It's हो। called rebellion. वो विद्रोह होता है। But this girl, लेकिन ये जो लड़की है, प्रभु ने ठोक ठोक के, प्रभु ने ठोक ठोक के, ठोंग ठुंग ठंग ठुंग. Amen. Next. उसके बाद God brought her into the purpose of her life. परमेश्वर ने उसको उसके जीवन के उद्देश्य में लाया। Many of us are living in our past. हम में से बहुत लोग हमारे अतीत में जी रहे हैं। Yeah, our past glory, हमारे अतीत की महिमा, our past pain, अतीत का दर्द, our past hurt. अतीत की चोट। God is saying, प्रभु कह रहे हैं preparation graces upon you. तैयारी का अनुग्रह तुझ पर है। So God will work on your hurts, तो प्रभु आपके चोट पर काम करेंगे, attitudes, आपकी मनोभावनाओं पर, motives, मकसद पर, build your character. अपने चरित्र को आपको So बांधेंगे you will become strong ताकि आप मजबूत होंगे, for you to be publicly released. ताकि लोगों के सामने आपको लाया जाए। प्रभु यीशु को 30 साल लगे, यूसुफ को 30 साल लगे, दाविद को 30 साल लगे, मूसा सबसे बड़ा मूसा, उसका तो टूंग टांग 40 साल आवाज आ रहा था। Okay, number 2. दूसरा, The second grace. दूसरा अनुग्रह, Yeah, it's called preferential grace. उसे कहते हैं चुना जाने वाला अनुग्रह। Out of 2, दो में से you will be selected. आपको चुना जाएगा। No. Out of 5, 5 में से you will be selected. आपको चुना जाएगा। Out of 1,000, 1000 में से you will be selected. आपको चुना जाएगा। So many girls came. इतनी लड़कियां आई थी, Beautiful ones. सुंदर थी वो। One whole year, एक पूरा साल work was happening over there. उनके ऊपर काम हो रहा था And out of those, I don't know, 100,000 कितने आए थे? और वो सैकड़ों लड़कियों में से One girl. एक लड़की। Wow. What is this grace? ये अनुग्रह क्या है? It means उसका अर्थ है people would like you. लोग आपको पसंद करेंगे, People will be kind to you. लोग आप पर दया दिखाएंगे, People will help you. लोग आपकी मदद करेंगे, People will be merciful to you. लोग आपके ऊपर कृपा दिखाएंगे, They will open the door for you. वो आपके लिए दरवाजा खोलेंगे, People will speak well about लोग you. आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, Your enemies will say, आपके शत्रु कहेंगे नहीं रे जाने दो उसको जाने दो. नहीं जाने दो उसको जाने दो। So when you go for an interview, तो जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाओगे, tell God, प्रभु से कहो thank you. धन्यवाद प्रभु, I am preferred. मुझे चुना जाएगा। When you are going for a contract, जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहे tell हो, God, प्रभु से कहो the favor of God प्रभु की कृपा is over my head. वो मेरे सिर पर है। Psalm 5:12 says, भजन संहिता 5:12 कहता है God surrounds you with favor.
प्रभु आपको कृपा से घेर लेते। Suddenly, Pastor, people are liking me. पास्टर अचानक से लोग मुझे पसंद करना शुरू कर दिया। Favor of God. प्रभु की कृपा है। Suddenly, people are helping me. अचानक से लोग मेरी मदद करना शुरू Favor कर of God. प्रभु की कृपा है। Suddenly, my enemies are not opposing me. अचानक से मेरे शत्रु मेरा भी विरोध नहीं कर रहे। Favor of God. प्रभु की कृपा है वो। Suddenly, people are becoming kind to me, Pastor. अचानक से लोग मुझ पर दया दिखा रहे पास्टर। Favor of God. प्रभु की कृपा है वो। Without favor, it's going to be a struggle. बिना कृपा के संघर्ष ही होने वाला है। Yeah. But with favor, लेकिन जब कृपा मिलेगी, oh, like Maska. मस्के के जैसा होगा। Okay. Now, different times, Esther experienced favor अलग अलग समय में जो एस्तर ने कृपा का अनुभव किया from her boss. उसके मालिक के पास से। You know, in some places, कुछ जगहों पर, not some places, everywhere, हर जगह पर ही, the boss, now, they always like some people. वो मालिक ना किसी को पसंद करते हैं। उनका चेहरा देख के आज का दिन अच्छा रहेगा. I pray you will be among those people. मेरी ये प्रार्थना आप उन लोगों में से होंगे। Yeah, may you be counted among those people. होने तो आपकी गिनती उन लोगों में हो। The moment you enter the room, जिस क्षण आप कमरे में अंदर आते हो, your boss should say, आपके बॉस ने कहना चाहिए, today is my good day. आज मेरा अच्छा दिन है। Can I say this? मैं ये कहूँ क्या? When Joseph was working in Potiphar's house, जब यूसुफ पोटीफर के घर में काम कर रहा you know था, what Potiphar said? पता है पोटीफर ने क्या कहा? I know God is with you. मैं जानता हूँ प्रभु तेरे साथ है। So when I look at you, तो जब मैं तेरी ओर देखता I हूँ, am so happy. मैं बहुत खुश होता हूँ। When the favor of God comes upon you, जब प्रभु की कृपा आपके ऊपर आती है, you are a joy to people. लोगों के लिए आनंद का कारण होते हो। See, when favor is over your head, everything is moving. जब कृपा आपके सिर पर होती है ना, सब चीजें आगे बढ़ते रहती Yeah. हैं। Once favor comes, एक बार अगर कृपा आ गई, लोग तुझे ढूंढ के आएंगे. लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। So you should learn, is favor flowing? तो आपने सीखना है, क्या कृपा बह रही है? Yeah, of course, there are some times you will have to war because maybe darkness is fighting against you. कभी कभी आपको लड़ना पड़ेगा, हो सकता है अंधकार आपके खिलाफ लड़ाई कर रहा है, Yeah, maybe you will have to stand and you should fight. हो सकता है आपको खड़े लेके लड़ना पड़ेगा, But it is in the spirit. लेकिन वो आत्मा में होता है। But normally when grace is not flowing, लेकिन आमतौर पे जब अनुग्रह नहीं बहता होता ना, step behind. कदम पीछे लो। नहीं पास्टर, लेकिन आज का ट्रेंडिंग चीज है. ट्रेंडिंग. अरे हमारा प्रभु ट्रेंडर है. आमेन। See, Jesus said, follow me. यीशु ने कहा मेरा पीछा करो। किसी ने जीसस को नहीं कहा, follow me. किसी ने यीशु को ऐसा नहीं बोला मेरा पीछा No, करो, but Jesus said, I follow the Father. लेकिन यीशु ने कहा मैं पिता का पीछा करता हूँ। So who's the trendsetter? तो ट्रेंड सेटर कौन है? The Father. पिता है। In the public, पब्लिक के सामने oh, they liked her. उन्होंने उसे पसंद किया। When she talks, जब वो बात करती है, people are saying, लोग कह रहे nice. अच्छा है बहुत। When she comes out, जब वो बाहर आती है, people look at her. लोग उसकी ओर देखते They हैं, say, nice. वो कहते हैं बहुत अच्छा है। Wow. वाह, Who is working? कौन काम कर रहा है? God. प्रभु। You go into your neighborhood, आप आपके अड़ोस पड़ोस में जाते हो, you speak, आप बोलते हो, and people say, और लोग कहते हैं "What चांगला बोलतो रे?" क्या अच्छा बात करता है ये, Favor. कृपा है ये। That's why sinners used to run to him. इसीलिए पापी लोग यीशु की ओर दौड़ के जाते थे। Have you heard one day आपने सुना एक दिन heaven opened स्वर्ग खुला and the Father said, और पिता ने कहा "This is my beloved son, ये मेरा प्रिय पुत्र है in whom I am well pleased." जिसमें मैं अति प्रसन्न हूँ, And और hear him. इसकी सुनो। Pastor, मैं सुनता तो सब लोग जाते. You are not a leader. अगुवे नहीं, फिर Who is a leader? अगुवा कौन है? बात करता है लोग सुनते. बात करता है और लोग सुनते हैं। When will this come? ये कब आएगा? Favor. कृपा जब आएगी तब। She had that. उसके पास वो कृपा थी। Who gave? किसने दी? God. प्रभु ने दी उसे। लेकिन उसके पहले लेकिन उसके पहले 1 2 3 1 2 3 tong टोंग ding टिंग tong टोंग tung tung. yeah. Pastor, now I am becoming older. No tong tung on me. पास्टर मैं अभी बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई टांग टुंग नहीं। I have good news. मेरे पास खुश खबर है। God called Abraham when he was 75. जब अब्राहम 75 साल का था तब प्रभु ने उसे बुलाया। God said, "Come here." प्रभु ने कहा यहाँ Tong टोंग tung. टुंग, कि 2 वादे दिए थे प्रभु ने उसे. क्योंकि प्रभु ने उसे 2 वादे दिए I थे। will give you a son. मैं तुझे बेटा And दूंगा I will give you many nations. और मैं तुझे बहुत सारे And I राष्ट्र will दूंगा give you a और मैं तुझे land. भूमि दूंगा। Tong. टोंग, जो प्रभु की योजना है तेरे जीवन के लिए वो पूरा होने के लिए पहला ठोंग ठोंग and then the favor will come. पहले टोंग टुंग होगा, उसके बाद कृपा आएगी। Yeah. From the king, राजा के she received favor. राजा की ओर से उसने कृपा पाई। Wow. Out of, I don't know, hundreds of girls. सैकड़ों लड़कियों के बीच Wow. He said, उसने कहा this is the one. ये वो लड़की है। I don't know what must be happening in her heart that day. मुझे नहीं पता उस दिन उसके हृदय में क्या हो रहा था।
The king said, "You are the one." राजा ने कहा तू ही वो लड़की है, And he placed the crown over her head. और उसके सिर पर मुकुट रख देता है। She thought, उसने सोचा "This is it." ये हो गया, अब That was not it. वो नहीं हुआ था अभी तक। तेरे जीवन के ऊपर प्रभु ने एक मकसद रखा है, वो पूरा करो, फिर घर जाओ यीशु के। आमेन आमेन। All the good things that God has given you, सारी अच्छी चीजें जो प्रभु ने आपको दी है, it is just a part of life. वो सिर्फ जीवन का एक भाग है। There's a purpose for your life. आपके जीवन के लिए उद्देश्य है, Fulfill it. उसे पूरा करो। Okay, last one. Let's take this. आखिरी, Okay, God gave her favor in the time of death. मृत्यु के समय में प्रभु ने उसे कृपा दी। Wow. You know, nobody can approach the king. He was the king of kings actually. वो जो है राजाओं का भी राजा था, यानी महाराजा था, Because 127 provinces were under him. क्योंकि 127 साम्राज्य उसके अंदर थे। उसमें इंडिया भी है। तो अगर if anybody has to meet her, तो यदि किसी उससे मिलना है, he has to tell them, please come. तो राजा ने बुलाना है कि तुम आओ। And Queen Esther has not met him for 30 days. और रानी एस्तर जो 30 दिन उसको मिली नहीं है, And now suddenly she hears और अचानक से अभी वो सुनती है। there's a man called Haman. हमान नाम का एक व्यक्ति है, He has released a decree उसने एक चीज की घोषणा की है, by fooling and deceiving the king राजा को झूठ बोल के, मूर्ख बना के, that the people of Israel should be completely annihilated. कि इजराइल के लोगों को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। The news comes. खबर आती है, Dialogue आगे पीछे बहुत होता है. वार्तालाप होती है बहुत सारी। So she says, तो वो कहती है please fast. कृपा करके उपवास करो, Fast for me. मेरे लिए उपवास करो। Why? क्यों? Because now I want to have favor over death. क्योंकि अभी मुझे मृत्यु पर कृपा चाहिए। मैं आपको कुछ बताना, आप में से कुछ लोग ना, वो जो प्रार्थना कर रहे हैं ना, वो अच्छा है, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं ना, मुझे अभी वो प्रार्थना चाहिए जहाँ पे पेट के अंदर खाना नहीं होता है। हाँ, ओके। The ones who are taking medicine, जो लोग दवाइयाँ लेते हैं, okay, they ask me, can we fast, pastor? वो मुझसे पूछते हैं, पास्टर हम उपवास कर सकते हैं क्या? या अगर 4 रोटी खा रहे हो तो 3 खाओ। अगर आप 4 रोटी खा रहे हो तो 3 खाओ आप। You know, fasting means your stomach should say, give me food. उपवास का मतलब आपके पेट ने बोलना चाहिए मुझे खाना दो। Okay, I will say something, you will understand. मैं कुछ अभी कहूंगा तो आपको समझ में आएगा। Yeah. How many of you know Jesus has given you authority? कितने लोग जानते हैं यीशु ने आपको अधिकार दिया है? हाँ? अच्छा। How many of you know in the name of Jesus you can cast out demons? कितने लोग जानते हैं यीशु के नाम में आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो? बराबर। अच्छा। तो एक दिन ना वो प्रभु के जो शिष्य है ना, निकाल रहे थे, बहुत सारे दुष्ट आत्मा गए, लेकिन एक दुष्ट आत्मा को वो लोग मिले। ये लोग बोल रहे जा यीशु के नाम में, वो क्या बोलता ना, नहीं जाएगा। तो सारे शिष्यों ने क्या बोला, अभी हम जा रहे हैं फिर। ओके, आई वांट टू से समथिंग नाउ। मैं अभी कुछ कहना चाहता हूँ। Some of us are living there. हम में से कुछ लोग वहां पर जी रहे हैं, जो फुसके विसके है ना वो जाते हैं, जो फुसके विसके ना वो जाते हैं, लेकिन जो बड़ा रहता है ना, बोलता है पेट में खाना रखता है और मुझे बोलता है जा। So Jesus said, तो यीशु ने कहा some spirits, कुछ आत्माएं, some situations, कुछ परिस्थितियां, they need prayer without food. उनको जो है प्रार्थना की जरूरत है जहां पर तुम खाना नहीं खाते। How many of you know when you drive a bike or a car, there is one traffic police over there कितने लोग जानते हैं जब आप एक गाड़ी या बाइक चला रहे होते हो तो एक ट्रैफिक पुलिस वहां खड़ा होता है with uniform. यूनिफॉर्म पहन के। The moment he puts his hand up, जिस क्षण वो अपना हाथ ऐसा ऊपर करता है, तुम लोग ब्रेक मारते हो क्या? यस, कितने लोग ब्रेक मारते हैं? अच्छा, अभी मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, कितने लोग ब्रेक नहीं मारते और जाते हो? Listen, सुनो, see that policeman, वो जो पुलिसमैन है he has authority. उसके पास अधिकार है। So the moment he lifts his hand, we all stop. तो जिस क्षण वो अपना हाथ ऊपर उठाता है हम सब रुकते, ब्रेक मार लेते। But some, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं निकल जाएंगे। उसको रोकने के लिए हाथ नहीं चलता है, बड़ा हथौड़ा चाहिए। क्या हुआ? ऐसा क्यों देख रहे हो? बाइबल पढ़ो, इज रिटन देयर। वहां पर लिखा है We want our stomach full. हम चाहते हैं हमारा पेट भरा हुआ रहे। And we tell one day one person said, Jesus said, speak to the mountain, go and fall there. I tried, pastor, nothing is happening. एक दिन एक व्यक्ति ने कहा, यीशु ने कहा वो पहाड़ से बात कर, जाकर वहां पर गिर जा। मैंने कोशिश की पास्टर, लेकिन वो वैसा हुआ नहीं। पहले बात तो वो शारीरिक पहाड़ नहीं है, वो पहाड़ है जो तुम्हारे सामने खड़ा है, जो तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रहना है, वो पहाड़ है। लेकिन पास्टर मैंने बहुत बार उसको कहा, बाद में मैंने विनती भी किया, वो गया नहीं पास्टर। उस पहाड़ को ना वो शब्द चाहिए जहां पर खाना नहीं होता है। आई एम नॉट सेइंग फास्ट ऑल द 3 मील।
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ तीनों समय का भोजन मत खाओ, एक मील एक समय का भोजन छोड़ो, और थोड़ा एडिशन करते हैं हम लोग, थोड़ा एडिशन। थोड़ा उसमें और जोड़ते हैं। हाँ, तुम्हारा जो एंटरटेनमेंट है ना, तो 3 दिन मत करो। जिस चीज से आप मनोरंजन लेते हो ना, वो मनोरंजन मत लो। या लाइक फॉर एग्जांपल टीवी, मान लो टीवी, टाइम पास, टाइम पास करना, उसके साथ खड़े रहो, गप्पा शप्पा। उसके साथ खड़े रह के गप्पा शप्पे लड़ाना, वो टाइम ना थोड़ा प्रार्थना करो, वो समय पे थोड़ा प्रार्थना करो, देखो क्या होने वाला है। फिर देखो क्या होने वाला है। आई प्रे मैं प्रार्थना करता हूँ दिस मंथ ये महीने में ग्रेस, अनुग्रह पर ग्रेस अनुग्रह एंड ग्रेस। और अनुग्रह।